Voters must have faith in election process for the democracy to succeed. Hello everyone, this is Kasturi and you are watching SST Buzz. Today in this module we are going to know about as a candidate, as a voters, as a part of election commission, what would be our duties and responsibility. We will get to know what are the challenges for the free and fair election. Even we will get to know what are the election campaigns for different party. So without wasting time, let's start. Now let's start with voter list. जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन जाता है तो उसके बाद फिर क्या है ना, वोटर लिस्ट बनता है एंड दैट इज कंट्रोल, दैट इज लेड बाय इलेक्शन कमीशन. ओके, सो नाउ वोटर लिस्ट जो बनता है means that in that constituencies who are eligible to give vote, to cast vote, who aren't, what would be their criteria, everything we will get to know. तो यहाँ पे वोटर लिस्ट के फर्स्ट एज लिमिटेशन दिया गया है कि एज 18 एंड अबव पर्सन दे कैन गिव देयर वोट, दे कैन कास्ट देयर वोट. Okay, so now it may be whatever gender would be, caste would be, religion, so it would not be taken care. 18 and above, all the people they can cast their vote, and that is known as adult franchise, and everyone's voting value would be same, one person, one vote, one value. Okay, so just think yourself now. It's if you are 14 and 15, so 18 and above, 18 you will get chance to give your vote. Now the second one, exactly when you want to give vote, what you want, what would be the requirement for that voting system? EPIC, election photo identity card. Okay, that card would be given to you, and here your photo would be there, name would be there, your home address, everything it would be given, and that will prove, yeah, your date of birth would be there. So according to that, that will prove that you are 18 and above. With the help of photo, it would be clear that that same person, and it will show you are in that constituency. वो जो क्योंकि वो home address बता रहे हैं, तो वो epic card earlier it was it was not so compulsory when it was introduced, but nowadays it is compulsory to all. So that is the second point. As a voter you should have that epic card. Now the third one, who can't cast vote, कौन वोट नहीं कर सकते हैं, वो क्या है, जो क्या है ना, क्रिमिनल, एंड द सेकेंड वन पर्सन विथ अनसाउंड माइंड. नाउ इट हैज ऑल्सो रीजन. Actually in democracy, the moment we are the part of democracy, we are taking decisions. So if we are not healthy enough mentally, so how we can judge, how we can take that decision? It would be perfect? Not at all. So that's why, so here they cannot cast their vote. Okay, so now from voter list, now suppose now after 3-4 years you would be eligible for giving vote. तो फिर अभी के जो now at present जो वोटर लिस्ट है उसमें तो तुम्हारा नाम नहीं है, तो that's why every 5 years वो वोटर लिस्ट अपडेट होता है. जैसे क्या है ना, उन दैट मीन्स सपोज दिस इज द इलेक्शन ईयर, तो इन दिस ईयर ये लिस्ट वुड बी अपडेटेड. वो अपडेटेड क्या होगा, जो भी नए कोई बच्चे 17 मीन्स 18 एंड 18 अबव, सो देयर नेम वुड बी एनरोल्ड. और जो क्या है ना, किसी का डेथ हो गया, अदरवाइज कोई ऐसा है कि जो क्या है ना अपने स्टेट से बाहर है, तो फिर फॉर देम देयर नेम वुड बी टेकन आउट. तो इसलिए हर एक जो इलेक्शन ईयर है उसमें वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है. Is it clear? Okay, so that is all about voter list. Now we will go for the nomination of candidate. You will tell, ma'am, I want to be a candidate. So for that, what exactly I should?
Definitely. So age of 18, you will give chance to give vote. And now for the candidate, you will have to be 25 and above age. So for that you will have to wait. Now why 25? Actually 18, age of 18, you will have that much sense to whom you are going to give vote. But for the candidate, you should have that much maturity. You should you will have to take that much responsibility. So that's why 25 and above age had been declared. Now the second one, what needs to submit. तो तुम अगर कैंडिडेट होना चाहते हो, बनना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें क्या क्या चीज़ें सबमिट करना ज़रूरी है. तो फर्स्ट क्या है, नॉमिनेशन फॉर्म, एक फॉर्म है वो फिलअप करने का ज़रूरत है. एंड द सेकेंड वन, सिक्योरिटी डिपॉजिट, एक अमाउंट ऑफ मनी यू नीड टू डिपॉजिट. So these two are there. And third point is that legal declaration. Legal declaration क्या है कि कोई भी क्रिमिनल केसेस के साथ तुम जुड़े हुए और नहीं, वो जानना ज़रूरी है. फिर तुम्हारे कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटीज़ है, कितना ज़्यादा तो लोन तो नहीं लेके रखे, और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू योर इनकम, प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा, तो वो सब का एक डिटेल तुम्हें देना पड़ता है. ठीक है, तो हम जितना इनकम करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट वी ट्राई टू सेव. अगर इनकम से ज़्यादा सेविंग हो जाए, दैट मीन्स somewhere we are doing wrong, isn't? Yes. So that's why in legal declaration, and that is actually given, means that order had been given by Supreme Court. First one, कोई criminal cases के साथ तुम जुड़े हुए कि नहीं. The second point is the detail of asset and the liabilities, कितना तुम्हारा properties है, कितना लोन लिया है तुमने, that would be cleared. And third point is that education qualification. ये लेके भी बहुत ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन किया गया है कि हाँ, पॉलिटिक्स के लिए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का क्या ज़रूरत है. ज़रूरत यहाँ पे इतना डायरेक्टली ज़रूरत नहीं देखते हैं, बट देन ऑल्सो इनडायरेक्टली एक एजुकेटेड माइंड कैन थिंक अबाउट दैट, ए बैलेंस वे दे कैन थिंक about the whole society. So for that, here as a education qualification, graduation, BA, BCom, BSc, that would be the minimum qualification. So if you want to be a candidate, definitely you will have to take care all these things. Now let's move on election campaign. What is election campaign and why it is needed? How we are choosing party as a as a part of that governing system, तो वो हम जानेंगे. पहले क्या है ना, इलेक्शन कैंपेन एक प्रोसेस है थ्रू विच हम क्या करते हैं कि हम डिसाइड करते हैं कि विच पार्टी इज बेटर फॉर गवर्निंग. Okay, so now election campaign, though already we know India is considered as a multi-party system. यहाँ पे बहुत सारे parties हैं, तो it would be very difficult कि कौन सा पार्टी को हम वोट दें और क्यों वोट दें. What benefit we are going to get, ये है ना. तो बिकॉज ऑफ दैट ये कैंपेन हमें हेल्प करते हैं कि वो जांच करने में कौन सा पार्टी को हम वोट दें. तो यहाँ पे देखो, डिफरेंट पार्टीज दे आर मोटो इज डिफरेंट. these are the slogan. Through this slogan they are actually going to set up into people's mind कि if they are getting chance for governing, so what exactly they are going to do for the citizen. ओके, तो नाउ यहाँ पे देखो, रिमूव पॉवर्टी कांग्रेस 1971. तो 1971 they have established, and that Congress party their that slogan is there, remove poverty. तो what exactly they are going to do for the citizen, वो ऐसे कुछ पॉलिसी बनाएंगे through which they will try to remove poverty or they will try to reduce poverty level.
Okay, now next we will go for Safe Democracy. This is by Janata Dal and they have set up their party 1977. तो जनता दल का क्या स्लोगन है? सेफ डेमोक्रेसी. हियर दे हैव फोकस्ड ऑन डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी कब बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाएगा? जब इक्वलिटी इज देयर, जब फ्रीडम इज देयर, ऑल दीज राइट्स had been given to the people, isn't? So here through safe democracy they wanted to give that assurance to the people कि yes, we are going for the free and fair democratic process, कि इसमें सारी people they are going to get equality, they are going to get freedom, even they are going to get all these fundamental rights. Okay, now we will go for Land to the Tiller, the Left Front 1977. That is basically set up in West Bengal. Now their motto is there कि हम क्या है ना, वो जो फार्मर्स है उनके तरफ हम ज़्यादा हमारा ध्यान देंगे. क्यों? क्योंकि फार्मर्स को लोन चाहिए होता है, इवन फार्मर्स को फार्मिंग के लिए और भी इनपुट्स चाहिए होता है. तो इफ़ वी आर गिविंग आर हेल्पिंग हैंड टू द फार्मर्स, तो फार्मर विल गेट दैट एडवांटेज. एंड डेफिनेटली वन कंट्री, इफ farmers they are if they are upgraded by the government, so definitely that state condition would be better also. So their motto is their Land to the Tiller. They wanted to help to the farmers specially. Now next is given Protect the self respect to the Telugus, and that is by Telugu Desam Party. वो उसमें क्या, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी इवन. सो ईच एंड एवरी पीपल, सेल्फ रिस्पेक्ट कब मेंटेन होता है? ईच एंड एवरी पीपल, इफ वी आर गेटिंग इक्वालिटी, इफ वी आर गेटिंग द सेल्फ रिस्पेक्ट, मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट व्हेन इट विल अपग्रेडेड, व्हेन the society will give us that much priority, that much respect. So each and everyone they should be self dependent, and that's why that was the motto of Telugu Desam. तो ये इलेक्शन थ्रू इलेक्शन कैंपेन हमें क्या है ना पता चलता है, हम जज करते हैं कि एक्चुअली फॉर द कंट्री व्हाट टाइप ऑफ पॉलिसीज आर नीडेड. एक्चुअली ये सारे इलेक्शन जो पार्टीज हैं वो अपना अपना पॉलिसीज बनाते रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मोटो, अकॉर्डिंग टू देयर थिंकिंग पैटर्न. तो इसलिए वो जिस तरह से वो स्लोगन बनाते हैं, जिस तरह से वो पॉलिसी अपनाते हैं, तो वो क्या है ना डोर टू डोर वो दिस काइंड ऑफ थिंकिंग दे आर गोइंग टू स्प्रेड टू डोर टू डोर. और हम वो जानने के बाद हम सोचते हैं अच्छा ये पार्टी तो ये करने वाले हैं, वो पार्टी तो वो करने वाले हैं, तो कौन सा पॉलिसी विच पॉलिसी वुड बी मोर कंफर्टेबल, मोर कन्वीनियंट फॉर द पीपल. तो ये हम सोचने के बाद, जज करने के बाद फिर हम कोई एक पार्टी को हम वोट देते हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्शन कैंपेन. अब हम ये जानेंगे इफ़ यू आर ए कैंडिडेट तो तुम्हें क्या क्या चीज़ थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. यू हैव टू कीप ऑल दिस थिंग्स अवे. ओके, तो वो क्या क्या है? फर्स्ट वन, तुम किसी को ब्राइब नहीं दे सकते हो, किसी को थ्रेटन नहीं कर सकते हो कि येस जस्ट गिव मी वोट, अदरवाइज आई विल सी यू. तो ऐसा नहीं कर सकते हो. अदरवाइज इफ यू हैव इनफ मनी देन ऑल्सो यू कांट गिव एनीवन ब्राइब कि चलो ये 10,000 दे देंगे तुम मुझे वोट दे देना, नॉट लाइक दैट. तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा. नाउ द सेकेंड थिंग्स क्या है? यूज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेस. गवर्नमेंट का जो भी रिसोर्सेस है, यहाँ हियर ऑल्सो आई हैव यूज्ड दैट गवर्नमेंट व्हीकल. इट मे बी व्हीकल्स, इट मे बी गवर्नमेंट का जो भी प्रॉपर्टी है वो कोई भी पार्टी यूज़ नहीं कर सकते. डेफिनेटली सपोज देखो इस बार कोई एक पार्टी ए
विन किया है और पार्टी ए का गवर्नमेंट है, तो वो क्या करेंगे, वो तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, नॉट लाइक दैट। जैसे ही इलेक्शन का डेट, इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो ऑन दैट टाइम जो गवर्निंग पार्टी है और जो ऑपोजिशन पार्टी है, बोथ आर इक्वली, बोथ वुड बी इक्वली ट्रीटेड एंड एवरीथिंग दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट, एक्चुअली द रूल्स for the election, that is all these things are decided by election commission। इलेक्शन कमीशन के सामने रूलिंग पार्टी भी जो है और ऑपोजिशन पार्टी भी वही है, तो ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड दे हैव मेड ऑल दिस रूल्स फॉर ईच एंड एवरी पार्टी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज देयर स्पेंड मोर देन, no one can spend more than 25 lakhs for Lok Sabha and 10 lakhs for Assembly, Legislative Assembly election। तो अगर पार्टी का बहुत सारे पैसे हैं तो वो बहुत सारे खर्चा कर देंगे, नॉट लाइक दैट, दे कांट। तो लोकसभा इलेक्शन के लिए 25 लाख मैक्सिमम एंड असेंबली इलेक्शन के लिए 10 lakhs। तो ये एज ए पार्टी मेंबर, एज ए कैंडिडेट, यू शुड गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स, दीज आर द रेस्ट्रिक्शन। Okay, now we will go for code of conduct here। use any place of worship, कोई भी ऐसा मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सारे प्लेस को एक इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए या तो फिर कुछ ऐसा इलेक्शन प्रोसेस के काम के लिए नहीं चुना जाएगा। क्यों? क्योंकि थ्रू ये मानना है कि ये जो मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सब लेके अगर कोई पार्टी वो इलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर दे आर एक्चुअली वो रिलीजियन के थ्रू जा रहे हैं। और हम क्या है ना, इंडिया एज ए सेकुलर कंट्री, तो कोई भी रिलीजन को हम आगे ऐसा इम्पोर्टेंस इस तरह से नहीं दे सकते फॉर द इलेक्शन पर्पस। रिलीजियन दैट इज आर परसेप्शन, आर लाइकिंग डिसलाइकिंग, तो वो लेके कोई भी पार्टी मंदिर, मस्जिद या तो चर्च नहीं यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज देयर नो प्रोजेक्ट आफ्टर अनाउंसिंग इलेक्शन डेट। अगर सपोज अभी पार्टी ए इज गवर्निंग, ओके, तो उनका अपना एक प्लानिंग है विद इन 5 years व्हाट एग्जैक्टली दे आर गोइंग टू डू, तो वो 5 years के अंदर शायद एक प्लान रह गया हो, तो वो अगर रह गया है और इलेक्शन डेट अनाउंस हो गया है, तो वो फिर से वो प्रोजेक्ट को स्टार्टअप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो स्टार्टअप कर देंगे तो फिर दैट वुड बी इनकम्प्लीट वर्क, तो पीपल कांट जज दैट कि वो कौन से गवर्नमेंट के थ्रू हुआ है। तो इसलिए कोई भी नया प्रोजेक्ट वो हाथ नहीं लगा सकते इफ इलेक्शन डेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। तो ये सारे चीज़ जो है ना, ये ऑल दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट, दीज आर एक्चुअली framed by election commission and strictly each and every party and candidate they will have to follow all this code of conduct। okay, चलो, all this election process, all this election preparation done by election commissions। so आज हम क्या, आज जैसे imagine today is the election day, तो क्या करेंगे हम, जस्ट इमेजिन योर सेल्फ एज ए वोटर्स। तो हम क्या करेंगे, वो जो टाइमिंग्स दिया गया है फ्रॉम मॉर्निंग 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, वो टाइमिंग्स के अंदर हमें वो पोलिंग बूथ पे जाना है। ठीक है, वो पोलिंग बूथ पे जाके फिर हमें वो वोट देना है। तो अभी प्लेस कहाँ है, जो क्या है ना, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी दे आर टेकिंग एज ए गवर्नमेंट स्कूल, अदरवाइज गवर्नमेंट ऑफिस। मेनली स्कूल लिया जाता है, क्यों? क्योंकि सराउंडिंग्स भी काफ़ी स्पेसियस है, सो दैट्स वाई। सो हम जाएंगे, फिर जाने के बाद थ्रू विच वो वोटिंग सिस्टम वुड बी देयर। तो earlier actually ballot paper was there where stamp was given, party's name, symbol, everything, and you need to choose. Now here nowadays EVM, electronic voting machines, through that machine we are giving casting our vote।
तो इसमें भी वही पार्टी नेम दिया हुआ रहता है, सिंबल दिया हुआ रहता है और उसमें बहुत सारे बटन्स हैं, तो इसमें क्लिक करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट वो विल बी प्रेजेंट, वो जो पोलिंग बूथ है उसमें कौन कौन प्रेजेंट होंगे, तो उसमें वो इलेक्शन प्रोसेस फ्री एंड फेयर मैनर पे होना चाहिए, तो इसलिए हर एक पार्टी का एक एक एजेंट वुड बी प्रेजेंट ओवर देयर। वो कुछ बोल नहीं सकते, किसी को ऐसा आई कांटेक्ट करके कुछ बता नहीं सकते, बट दे वुड बी प्रेजेंट ओवर देयर फॉर दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट, all these things, all this election process actually handled by election commissions. Now election commissions अकेले वो handle नहीं करते, actually they are leading, they are taking as a leading role and they are actually hiring all this government employee and few peoples for that helping hand, and they are hiring them, and for that election process actually they are taking care. Okay, so this once done, suppose शाम को 5 o'clock done, the election process done, afterwards that EVM, that machine would be sealed and that would be kept as a very secure place, then and then that counting process would be started. तो ये सील होने के बाद एक सिक्योर प्लेस में रखने के बाद फिर वंस डेट हैड बीन दैट डिक्लेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन, एंड ऑन दैट डे दैट वुड बी दैट वोटिंग वुड बी काउंटेड फॉर ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वो वोटिंग काउंट होंगे, एंड वी नो बेटर ऑन दैट डे वी ऑल आर eagerly wait for the we will get maximum vote, and for that media they are taking very crucial role, isn't? So from morning to till that day, so all this media, all this news reporters and all, they are giving us all this update. And last of all, whose party will get that majority, they will get chance to govern. अगर कोई पार्टी कोई एक को that very clear majority नहीं मिला, तो वो गठबंधन कर सकते हैं, वो एलाइज बना सकते हैं, वो अपना फ्रेंड और दूसरा पार्टी को लेके वो मेजोरिटी दिखा सकते हैं. सो इन दिस वे इलेक्शन प्रोसेस डन बाय द इलेक्शन कमीशंस. अब हम जानेंगे इंडिया के जो इलेक्शन है ये कहाँ तक डेमोक्रेटिक सेंस फॉलो करते हैं. फर्स्ट पॉइंट हियर इट इज गिवन रिडक्शन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस. अनफेयर प्रैक्टिसेस इट मे बी नेम चेंज कर दिया, अदरवाइज इलेक्शन प्रोसेस में बहुत सारे फ्रॉड केसेस, इवन मैल प्रैक्टिसेस, ये सारे कई कई जगह में मिलता है, नॉट एवरीवेयर. तो इसका और भी कम किया जा सकता है और भी फेयर वे में इलेक्शन प्रोसेस को संभाला जा सकता है. तो ये अगर हम करते हैं जहाँ पे क्या है ना 25 लाख के ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना है, कोई कोई पार्टी अपने दूसरे लोकेलिटी को ब्राइब देते हैं, थ्रेटन करते हैं, कहीं कहीं पे जगह पे ये सब मिलता है. तो ये जितना कम होते जाएगा उतना डेमोक्रेसी, उतना इंडिया के जो इलेक्शन प्रोसेस है वो डेमोक्रेटिक वे भी माना जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज देयर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. यहाँ पे इंडिया का जो इलेक्शन प्रोसेस ये जो डेमोक्रेटिक वे में हो रहा है दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन हियर इन इंडिया दे आर 100% इंडिपेंडेंट. वो गवर्नमेंट के लिए भी काम नहीं करते हैं, वो ऑपोजिशन पार्टी का भी बात नहीं मानते हैं. दे आर टोटली इंडिपेंडेंट. इवन फॉर दैट व्हाट दे हैव डन, दे हैव मेड कोड ऑफ कंडक्ट्स, ऑल दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड इलेक्शन. तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ईच एंड एवरी वन विल हैव टू फॉलो. वो क्यों ना वोटर्स क्यों ना है, वो दैट कैंडिडेट्स क्यों ना है, पार्टीज क्यों ना है, everyone will have to follow all this code of conduct related election. तो वो फ्रेम तो कर लिया. नाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो मस्ट बी देयर. अगर कोई पार्टी और कैंडिडेट नहीं फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल बी पनिश्ड.
एंड द थर्ड पॉइंट इज देयर दैट ऑल दिस, वो एक इलेक्शन प्रोसेस एक वास्ट प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन के जो ग्रुप ऑफ पीपल है दे आर नॉट इनफ। तो क्या करते हैं वो इलेक्शन कमीशन, वो हायर करते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, और वो इलेक्शन प्रोसेस के लिए वो उन दिनों में काम करेंगे, एंड दैट वुड बी मीन्स ऑल दिस होल इलेक्शन प्रोसेस वुड बी टेकन केयर बाय देम। तो ये जो स्ट्रैटेजीज है, कोड ऑफ कंडक्ट, ऑल दिस गाइडलाइंस वुड बी दे गिवन, एवरीथिंग, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, एवरीथिंग दे हैव, मीन्स इलेक्शन कमीशन दे हैव रिटन, they have made that guidelines. Only thing is there, as a voter we need to follow, as a government employee, the part of election commission they need to follow, even the party and candidate they need to follow all these guidelines. And if all this aspect we are following all these guidelines and code of conducts, and if we are thinking about to reduction of that unfair practices, definitely democracy would be means our election process would be more democratic and it would be conducted more fair way. ठीक है? Now we are going to focus on popular participation, who is going to give their active participation election, वो हम जानेंगे. So here first one, turnout. Actually turnout through the process we can get the number of people, those who have taken part in election, those who have cast their vote. ठीक है, सो टर्न आउट विद द हेल्प ऑफ दैट टर्न आउट फिगर्स वी कैन कंपेयर विथ अदर कंट्रीज. सो कौन सा कंट्री के वोटर लिस्ट में वो मीन्स कौन सा कंट्री के वोट नंबर ऑफ पीपल आर मोर फॉर गिविंग वोट. तो इसमें देखा जाएगा यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका के साथ अगर कंपेयर करते हैं हम, तो इंडिया के वोटर नंबर ऑफ वोटर्स आर मोर, ये देखा गया है. तो इसमें अभी क्वेश्चन क्या है कि कौन सा सेक्शन, विच सेक्शन विच सेक्शन दे आर गिविंग देयर मैक्सिमम वोट. सो नाउ डेफिनेटली एक्टिव मेंबर्स आर देयर हियर इन इंडिया, SC ST other backward people, even those who are unprivileged people, even illiterate poor, that section they are more active than literate and civilized people. यहाँ पे देखा जाएगा तो इफ वी आर कंपेयर गिविंग आर कंपेरिजन, तो दूसरे कंट्री में के यूएस में क्या है, रिच एंड जो लिटरेट ग्रुप ऑफ पीपल दे आर एक्टिव ओवर देयर, एंड हियर इन इंडिया दैट अनप्रिविलेज्ड पुअर देन बैकवर्ड कास्ट दे आर गिविंग देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन. नाउ ये सेकेंड पॉइंट में ही थर्ड पॉइंट छिपा है, वो क्या है, क्रिएटिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी. ये जो अनप्रिविलेज्ड ग्रुप है, ये जो पोर इवन इलिटरेट पीपल है, दे आर थिंकिंग इफ वी आर क्रिएटिंग प्रेशर, if we are giving a pressure to party, so according to that they are going to make their policies and in future they are going to get extra privilege. Now next last point is there. So here in India ये देखा गया है कि 1/3 of the people they are giving, means they are active participation and election campaign, and half of the population they are giving their means they are showing their active role in the election. सो इन इंडिया पॉपुलर पार्टिसिपेशन के बारे में हम जान चुके हैं, हु इज गोइंग टू टेक नाउ वी विल फोकस ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम. जो भी इंडिया का इलेक्शन हुआ है वो दैट प्रीवियस ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज हमें ये जानने को मिलता है कि आउट ऑफ 3 2 रूलिंग पार्टी को फिर से मौका नहीं मिलता है, दे आर नॉट गोइंग टू गेट चांस सेकेंड टाइम फॉर रूलिंग. और अगर वही चीज़ यूएस में देखा गया है कि दोज हु आर रूलिंग सेकेंड टाइम ऑल्सो दे आर गेटिंग चांस टू रूल मैक्सिमम केसेस. तो ये क्यों है, क्योंकि इन इंडिया दोज पार्टी गिविंग ऑल दिस कीपिंग ऑल दिस प्रोमिसेस इन फ्रंट ऑफ द पीपल,
might be they are not able to fulfill that, all these promises. So that's why that common citizen, they common people, they are not giving their vote to those party, those who have not kept their promise nicely. So that's why out of two parties, they are not going to win second time. Now here, what are the reason? First one, sometimes they are throughout that time span 5 years, they are not working that much, but on the time of election they are distributing money, they are spending money more. Why? Because they want to give that bribe to the people, ताकि वो पैसा दे दे और people also they should give them vote. तो ये because of that people they had a very clear idea कि नहीं, this last 5 years they have not done all these things what exactly they should do. Okay, so now the second point is there that people's verdict by the defeated party, वो एक acceptance हो जाता है कि that is as a people's verdict, nothing else. तो ये जो सिनेरियो है इलेक्शन प्रोसेस में, ये जो सिनेरियो है दैट वी कैन फाइंड आउट ओवर देयर इन इंडिया, लॉट मेनी दैट challenges are there, many challenges are there because of due to high population, due to multi party system. सो दैट्स वाई बहुत सारे चैलेंजेस है जो क्या है ना इलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा स्लो डाउन भी करते हैं और थोड़ा ग्रे एरिया में भी रखते हैं. Now we will go through different challenges, different adversity जो क्या है ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन के रास्ते में रुकावट हो जाते हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो दोज हु आर बिग पार्टीज वो बहुत ज़्यादा अनफेयर एडवांटेजेस ले लेते हैं एंड ऑन द अदर हैंड स्मॉलर पार्टी वो बहुत एडवर्सिटी डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं. नाउ द सेकेंड पॉइंट क्या है, कुछ पार्टी क्या है ना बहुत सारे क्रिमिनल के साथ उनका गुड कनेक्टिविटी है, बिकॉज ऑफ दैट वो इलेक्शन जीतने के लिए ऑल दिस मैल प्रैक्टिसेस के सहारा लेते हैं जो क्या है ना विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल दिस मेथोडोलॉजी वी कांट से द इलेक्शन प्रोसेस एज ए फ्री एंड फेयर. नाउ नेक्स्ट इज देयर कुछ पार्टीज क्या करते हैं, कैंडिडेट्स वो अपना फैमिली मेम्बर अदरवाइज रिलेटिव्स को अपना टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो ये फ्री एंड फेयर वे है ही नहीं, ये एक्चुअली द इलेक्शन प्रोसेस इज बायस्ड. And now one more point is there, we the common people actually we used to get very little chance to choice. क्यों? क्योंकि सारे जो बड़े बड़े पार्टी हैं उनका जो पॉलिसीज है वो मोरलेस सेम है. तो हम जब चुनने जाते हैं तो हमें एक इतना ज़्यादा कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं लगता है, तो समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज. सो इतने सारी डिफिकल्टीज है, एडवर्सिटी है, चैलेंजेस है. नाउ योर क्वेश्चन वुड बी देयर कि व्हाई वी शुड गो थ्रू ऑल दिस चैलेंजेस. Why? Because in future you are going to reform all these challenges. You are going to set up all these different code of conduct, rules and regulations on the way of election. So that's why today you are studying ताकि in future you can set up all these good rules and regulations through which we can go for free and fair elections.